Okay, let's start. Shoulders back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Swing back. Open your back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Keep your feet apart. Go from side to side. One arm overhead. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Just touch the floor and come up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Cross toe touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Feet together, hands on the knees, knee circles. 1, 2, 3, 4, 5, reverse. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, hold one knee and pull. 1, 2, first hold and pull. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Keep your feet apart. Go from side to side. Inner thigh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, feet together. Just raise your leg on the side. Alternate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. One heel out. Go down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, come on to one side. Toes up, heels up. Walk on your toes. 1, 2, 3, 4, 5. Back. Again. Walk on your toes and back. Now toes up and walk on your heel. Back. Again, walk forward and back. Okay, now keep some distance between the feet, shoulder distance. Go down, touch your toes. Just sit down slowly and come on up. Keep holding your toes. 2, down and up. 3, slowly sit down and come up. Last one. 4 and come up. Okay, keep your hands forward. Just pull your shoulder blades back. 1, 2, 3, pull back. 4, 5, 6, 7 and 8. Arms up. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Pull back, kick back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Jog, 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 jog on the spot. Jog it out. Get your heart rate slightly up and feel warm. Okay. Alright, keep jogging. So we will be doing 5 exercises, repeating the 5, then moving to the next circuit, and we will do 3 circuits today. Okay. So we will start in the next 10 seconds. First exercise, I want you to hold your dumbbells. If you don't have dumbbells, just hold your fist tight. Okay. Squat, curl and up. Ready? Let's go. Down, curl and up. Press
Very nice. 5 down slowly. Keep your elbows close to your body. Very good. 7. Good job. 8. 9. And 10. Excellent work. Okay. Now hold the dumbbells on the side. Okay, keep some distance between the feet. 1, 2, curl and back. Ready? On the side, curl and back. जितना हो सके उतना नीचे जाना है. Keep your shoulders in one line. Go. Down, down and curl. 2, side and curl. 3, down. Very good. 4, on the side and curl. 5, good job. 6, side and curl. 7, side and up. 8, on the side and curl. Last one, on the side and curl. Next exercise, take one leg back, okay? Dumbbells on the shoulders, and every time you come up, you have to press. If you can't go down all the way, no problem. Jitna ho sake utna and come up. Ready? Let's go. 1, 2, 3, lunge to press. 4, 5, 6, 7, 8, nice one, 9, 10, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nothing, continue. and 8. Very nice. Okay. We need to mute. Yeah. Change the leg. थोड़ा सा one step out. Then take it back. एक के सामने एक रखोगे, you will topple. Just take one step out. Take it back. Load your dumbbells. Just dip down and press. 2, 3, 4. Lock your elbows overhead. 5, 6. Good job. 7, 8, 9, 10. Nice work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Very nice. Watch the next exercise. It's a row combo, okay? So soft bend in the knees, go down, up to your ankles, come up and lift your dumbbells to your chest, okay? One movement down, other movement up. Go. Down, pull, 2, and up, 3, up. Knees में थोड़ा सा bend करना है, shallow bend in the knees, and keep the dumbbells close to your legs. 5, pull, 6, and up, 7, good job, 8, up, 9, and up, 10, and pull. Very nice. Next exercise, keep your dumbbells near the chest and we're doing a cross punch, okay? 2. Fast nahi karna hai. We want to do slow and controlled movements. Just punch, bring it back, punch and bring it back. Ready? On your mark, soft bend in the knees and let's go. 1, 2, 3, 4. Twist your body slightly. 5, 6, 7, 8,
next level. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 3, last 2, last 1, and stop. Very nice. So we will repeat these exercises one more time. Take some distance between the feet, toes pointing out. Knees you have to press them outside, okay? Go down, curl, and then come on up. Knees को अंदर bend नहीं होने देना है. Keep it out. Go. Down, curl. 2. Nice one. 3. Keep your back straight. 4. 5. Very good. 6. 7. Excellent work. 8. Go down, curl, and up. 9. 10. Good job. Last one. And stop. Okay. Next one. We're doing side, side, and hammer curl. Okay? Keep the dumbbell vertical all through. Try to go down as much as you can. Let's go. Right, left, and curl. Again, right, left, and curl. Go down, go deeper as much as you can. 4. Change and curl. 5. Other side. Curl. 6. Change. Good job. 7. On the side and up. 8. Side and up. Last one. Side to side and up. Okay, now we're doing lunge to press. Take one little step out, then one good step back. Load your dumbbells on your shoulders, dip down, and in the same momentum you have to come up, okay? Same momentum, come up. Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Make your elbows straight when you come overhead. Lock your elbows. 10. 1, 2, 3, 4. Feel the burn in your entire body. 6, 7. Last one. And stop. Okay. Change. अगर आप बहुत कम distance रखोगे, then you will have problem in the knees. If you keep it too far, you will topple. So just take a step out, take a comfortable step back, load, ready, on your marks, get set, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good work, everyone. 8, 9. Don't be fast. Slow and controlled movements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Very nice. Upper body is on fire. Now we will work the hamstrings. जब आप नीचे जाते हो, you are working the back of the legs, hamstrings. तो बहुत bend नहीं करना है. Just shallow bend. Go all the way down. Come up and pull. Ready? Go. Down. Pull. 2. Keep your dumbbells close to your chest. Lift your elbows. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, nice work, 10, last 2, 11, last 1 and 12. Good one. Next one, we want to do the punches. Keep your dumbbells near your chest. Okay, soft bend in the knees. Ekdam straight mat rakhna, just soft bend in the knees so that you can punch on the side. Keep your dumbbells at face level. Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, super, 10, 1, 2, 3, 4, 5, punch it out. Come on, side to side, keep your dumbbell up, last 4, change, 3, change, 2, change, last 1 and change. Okay, 1 minute rest, drink some water, come back for round number 2. So ये सारे exercises है, they are using your entire body. We are using all the muscle groups in the body, but we are going slow. So this is going to raise your metabolism for the full day, and it is kind of conditioning because हम कुछ fast नहीं कर रहे हैं. Okay? Okay, for the next one, we want to lie down. I will show you the exercise. We are starting in 20 seconds. So we are going to do a tricep press combo. Okay? Watch. Keep your elbows close to the body. Dumbbells are vertical. First, up. Then I want to take the dumbbells down near my ears. Press up and down. 2 movements. Okay? Ready? Let's get started. Keep your elbows close to your body. Back, up and down. Press up. Take it back. Up and down. 4. Back. Up. Keep your elbows very close to your body. Back. Nice one. 5. Lift. And down. 6. Up. And down. 7. Up. And down. 8. Back. Up and down. 2 more. Back. Up and down. Last one. Up. Back. And down. Okay, now come on up. Dumbbells in the front. Change the position as I'm telling you. Knees down. Okay. First I'm going to go down, then come up, and then I'm going to row and row. Ready? Start. Down and up and lift for a row. Keep your hips down. Hips down. Your hips should go down along with your shoulders. Nice one. And lift. 1 push up and 1 renegade row. Okay, this is called renegade row. Down and up. Row and row. Again, down and up. Lift up and lift up. Last one. Down, up and lift. Lift. Okay, next one. Lie down again on the floor. Lie down. Okay, time pass नहीं करना है, फटाफट. Okay, you have to change movements. Overhead. Okay. I'm going to lift one leg, lift the other leg, and then slightly come. Ready? Let's go. 1, 2, and lift slightly. 2, up. And lift, work the abs. 3, up and lift. 4, up and lift. 5, up and lift. Good job. 6, up and lift. Last 2, 7, up and lift. Last one, 8, up and lift. Very nice. Now take both the dumbbells in your hand
will work the chest, okay? Down and again press, okay? Fly, up and press. Start. Fly, up and press. 2, lift and press. 3, up. Good job. 4, 5, super. 6 and press. 7 and press. Nice work. 8. Good job. 9 and press. Last one and press. Okay. Come on up. Okay. Be in this position. Okay. Right leg bend. Turn to the right and chop. Right and chop. Ready? Let's go. Swing up. 2. Take it down, take it back and up. 3, 4, 5, 6, 7. Swing. 8, 9, 10. Good job. 1, 2. Lift. 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Very nice. Now we will change the leg. Make sure you're swinging back. You're using the entire core, upper body, okay? And lift. Alright, this is the position at the back. Ready? On your marks, just hold your dumbbells tightly. Don't fling your dumbbells away. Okay? Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Lift. 6, 7, 8, 9, 10. Good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and stop. Very nice. We will do the same exercises now. Repeat. So lie down on the back. Lie down. We will do a tricep combo. Okay. First, take your dumbbells back, next to your ears, press up, down and up. Let's go. Press up, dumbbells back and press. Just make sure that your elbows are very close to your body. 5 and down. 6, good job. Continue. Take as many repetitions as you can. Slow and controlled movements. Feel the burn in your triceps. Very good. Last one. And stop. Okay, now we will just lie down. We will do the push-up later on. So first hold your dumbbell. Okay. Now I want you to take both your legs up and touch, try to touch your toes and come down. Again down, up and toe touch. Ready? Go. Down
Keep your hips down. Go down. Come up and lift and lift. Start. Down. Press up. And then you need to lift. Go. And up. Hips down. Along with your body. Keep your hips in alignment with your shoulders. Down. Very nice. And lift. Good job. Down. Excellent work. And pull. Go down. Lift. And pull. Last one. Down. And pull. Very nice. Good job, everyone. Now let's come up. Let's come on up. Come up, everyone. Stand up. Okay. Hold your dumbbell in the front and just twist from side to side. Ready? Bend your elbows slightly and twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Excellent. Keep your dumbbells away. Now we will do, अगर आपके पास आप wall को back रख के बैठना चाहते हो, you can do a wall sit. Otherwise, keep your legs outside, toes pointing out, hips out, okay, hips out. Sit down and you want to be there as much as possible. Ready? On your marks, get set and go. Look forward. Don't get your knees in the front, keep it back, hips back. Nice. If you want, you can pulse. थोड़ा सा टाइम जल्दी जल्दी निकल जाता है if you pulse, okay? Count, everyone. Start counting. 1, 2, everybody count. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last. 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. Okay. We will do 30-second jog. Ready? On your marks. Get set and go. Jog it out. Jog faster. Very good. Nice one. Keep jogging. Okay. I have just increased your time. Now we have to jog for 30 seconds. Okay. इसके बाद 30 seconds. Fast. Faster. As fast as you can. 20 seconds. 20 seconds. Very good. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Good job. 60-second rest. We will now move to the third and final circuit. Very nice. All these exercises you can, like I said, आपको अगर डंबल्स नहीं है, but I highly recommend कि आप अपने साथ 1 pair of dumbbells ज़रूर रखना, maybe 2 kgs, 3 kgs or 5 kgs, okay? It's an investment for a lifetime. जब भी आप dumbbells के तरफ देखोगे, you will have a mood to work out. So always keep your dumbbells in your, around you, in your bedroom, in your balcony, so that you are motivated to work out. All right. Next one I will show you. We are doing a courtesy lunge to a raise. So I want you to keep your feet closed. First you want to take a cross step back, go down, up and raise. Okay. Ready? Alternate legs. Go. Down, up and raise. Change. Down. जितना आप हो सके उतना नीचे जाओ. If you can't go low, you can do a shallow bend. Up.
3 and up, 4, nice one, 5, super, 6 and up, 7 and up, last one, 8 and up. Very nice. Now keep your dumbbells in the supine position. First we want to curl, okay, and then we want to do a cross flat like this. Alright? Keep your elbows close to your body, curl, down and up and up. Ready? Let's go. 1 on the side and on the side. 2 and lift. Very good. 3, we are working the biceps and the chest muscles. And up. 4 and up. Super. 5, lift and cross lift. 6, nice one. Last one, bicep curl and lift. Okay. Ready? Next one. Keep your distance between the feet. Okay. I want you to cross. Okay. Go on the side. Touch the elbows. And then lift both the dumbbells up. Then change. Up and lift. Start. Down. Up. And lift. 2. And up. Feel your core and abdominal muscles working also. And lift. 3. Up. 4. Up. Bend your knee and take your dumbbell down. Knee bend, take the dumbbell down and come up. Nice one. Okay. Good job. And up. Last 2 and up. Okay. Next one, keep one dumbbell down. Okay. Lunge down, pass and come up. Lunge down, pass your dumbbell from the bottom and come up. Ready? On your marks, right leg back and go. Down, pass and up. Down and up. 3. Keep your dumbbells in front. Up. 4. Pass from the bottom. Up. 5. Good job. Up. 6. Super. 7. Nice one. 8. Pass. Excellent. 9. And up. 10. And up. Okay. Excellent job. Now we want to do a swing. Okay. आप 2 डंबल्स यूज कर सकते हो या सिंगल डंबल. Keep your dumbbells close. When you go down, you want to bend, swing back like this and come on up. Swing and up. Ready? Let's go. Back, up, 2. Push your body from your hips. Hip thrust. 4. Drive from the hips. 5. 6. Look back, look back. 7. 8. 9. 10. 1. 2. Good job. 3. Push up. 4. Take your dumbbells up. 5. 6. 7. And 8. Nice one. Okay, keep one dumbbell down. One dumbbell, keep it in the front like this. And we have to do simple knee-ups, okay? But keep holding your dumbbells so that our biceps and upper body is in tension. Ready? On your marks. Get set. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don't rest your elbows. Keep them slightly forward. 8, 9, 10. Go. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Touch your knee to the dumbbell. Very nice. Let's go. Up. Last. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And stop. Good job. We will repeat these exercises one more time. Okay? So we are doing a courtesy and fly. So if you can't, अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हो, no problem at all. Just take a step back, come up and lift. Ready? Let's go. Down and lift. 2. Up. 3. Keep your core tight. Ab muscles एकदम tight रखो. Don't keep your body loose. Keep your body nice and firm. 5. And lift. And smile everyone. Last circuit. 7. And up. 8. Good job. 9. Up. Last one. 10. And up. Very nice. Now dumbbells are like this. We're doing the bicep curl and we're working the chest muscles. Okay? So take your dumbbell up, cross up to your face. जितना हो सके उतना आपको lift करना है. Ready? Try your best. Go. Curl, lift and lift. 2. Very good. Let's go. 3. And lift. 4. Lift. 5. Curl. Work the chest. Work the biceps. And up. Last one. Curl. And lift. Okay. Very good. Next one. I want you to go. So this is the wrong position, okay? Don't do like this. Keep your dumbbells in the front. Bend, touch the toe and come up and just lift the dumbbells forward, slightly bending your elbows. Ready? Let's go. Down, up and lift. 2. जब आप lift कर रहे हो, that is the time your ab muscles and your back muscles are working. Okay? So don't swing. Just lift. And up, down and lift. 7 and up. Good job. 8 up. 9. Super. 2 more and lift. Last one and lift. Okay. Next exercise. अभी हम we did the lunge. Now we will do the figure of 8. Okay? So dumbbell पकड़ना है and bend down. Okay? Just don't ऐसे back में से नीचे नहीं जाना है. You want to squat, pass the dumbbell and make a figure of 8. Okay? Ready? Let's go. Down and change. 2 and change. Make a figure of 8. 3. Pass the dumbbell. Make sure your knees are pressing outside. Don't press your knees in. Very nice. Sit down and pass. Very nice. ये सारे exercises, they will help you in everyday movements. Okay? Picking your luggage, lifting up, putting things overhead. तो आप strong बनोगे. Everyday workout है ये. Okay? Ready? Last 2. And last one. Very nice. Let's do the swing now. When you swing, look down like this. Don't look like this. Your spine is not correct this way. Look down. Bring your dumbbells up to this level. Ready? Let's go. Bend your knees. Go down and lift. 2. अपने hips से push करना है. Momentum from your hips. 3. 4. 5. 6. Good job.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Keep your dumbbells down. Last exercise. Keep your dumbbells. We're doing a kick back to a pull. Ready? Let's do it fast. Ending today's workout with a kick back. Ready? Arms up. On your marks. Get set. Go. 1. Change. 2, 3, 4. Pull. 5, 6, 7, 8. Up. 9. Come on. Kick back. Pull. Super. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and stop. Good job, everyone. Drink some water, come back for cool down. Okay, nice one. Lie down on your back. Lie down. Feet together. Feet together and pull. Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Keep one leg down, hold one knee and pull inwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. Pull the other knee inwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Lift both your legs, hold them from the side and pull, rock from side to side. Give your lower back a good massage against your mat. Rock, rock, rock. Pull your legs as much as you can. Very nice. Okay. Single leg up, hold your calf and pull and hold. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. उसी leg को बाहर के तरफ डालना है. Okay? Keep it on the side. Other leg should be pressed down. And bend your knee and get your leg up. Change the leg. Other leg up. Hold your calf. Keep your knee straight. Pull and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drop your leg on the side. Other leg is straight. Hold. Now bend your knee and bring it up. Come on up. Feet together, hold your toes. Hold your toes and bring it down. Butterfly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now press down and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. One leg straight, other leg bent. Hold your ankle and knee and pull. थोड़ा lift करके pull करना है. Okay, so you should feel the stretch in your hips. And change. Very nice. Come on your knees. अगर आप ये कर सकते हो, आपको knees का problem नहीं है, just come on your knees, sit down. Okay, just be in this position. अगर आपको knees का बहुत problem है, या तो आप पीछे कुछ रख सकते हो, या just be on your toes like this, or you can even be standing like this. Okay, but just be on your heels. Okay, and now give your thighs a good rub, a good massage. Okay, nicely. Okay, hold your hands back and pull. All
Alright, now keep your hands down and come in the squat position. With your elbows, press your knees out and swing from side to side. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Hands down. Keep your body weight in the front and slowly come on up. One heel out. Go down. Down, down, down. Hold 1, 2, 3, 4, 5 and change. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Hold your fingers. Pull in 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. Change. And reverse. Pull back. Hold your elbow. Press in nicely. 1, 2, 3, 4, 5 and change. Okay, cross your hands overhead and pull on the side. Hold it there. 1, 2, 3, 4 and 5. Change on the other side. 1, 2, 3, 4 and 5. Swing down. Swing, swing. Look down. Okay. Inhale up and exhale. One more. Inhale and exhale. Fully breathe out. Last time. Inhale and exhale. Very nice. Join your palms together. Rub them. Open all the nerve endings nicely. Cover your eyes. And thank the opportunity, thank God for giving us a chance to come and work out together. Come closer everyone. Let's take a nice selfie. Let me see all of you sweating. Come closer. Ready? Fast, fast. 3, 2, 1 and go. Okay, we'll do one more. 3, 2, 1 and go. And we have a second page also. 3, 2, 1 and go. All right. Good job everyone. Well done. आज का वर्कआउट फुल बॉडी कंपाउंड मूवमेंट्स था. एवरीवन डिड ग्रेट. सबका पोस्चर बहुत बढ़िया था. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ओवर टू निरंजन. Perfect. So thank you so much. Okay, so for first आप सबको बहुत बहुत बधाई. Many congratulations to all of you all. क्योंकि अभी मैंने देखा that we had 85 people joining us in the whole workout today. Okay, 85 लोग हमारे पास joining हुए हैं. So kudos to all of you for coming together and making sure that this is a rocking sort of a workout. Okay, so आज जो है ना आज काफी स्पेशल डे है बिकॉज जनरली ट्यूसडेज जो होते हैं वो हम ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडेज के नाम से जानते हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे का मतलब है ऐसे व्यक्ति की हम स्टोरी लेते हैं जो अपनी जर्नी अच्छी तरीके से समझा के बताते हैं. ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे के दिन हम डिटेल जर्नी देखते हैं, डिटेल जर्नी सुनते हैं, उतार चढ़ाव, उन्होंने क्या किया था, क्या उनके लिए वर्कआउट हुआ, क्या नहीं वर्कआउट हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्यों शुरुआत की थी, क्या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में थे. तो ये डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आज और किसी की नहीं आप सुनने वाले हैं. आप खुद गौरी मैडम की स्टोरी सुनने वाले हैं. तो वी आर गोइंग टू नाउ हैंड इट ओवर वंस अगेन टू गौरी फॉर showing her detailed transformation story. So Gauri, you can take over, and in the meanwhile, I will just run up your PPT. Okay, I've already opened the PPT, so I can share it. No worries. All right, Okay. cool, perfect. Great. Okay. So today I have the opportunity to share my story. So I really want to, thank all of you, the entire community and the coaches. तो मेरी स्टोरी जो है वो सिर्फ वेट लॉस की स्टोरी नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज़ माय वेट लॉस स्टोरी, बट मोर सो इट इज़ माय ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. आई हैव स्पेंट 20 years इन दिस अपॉर्चुनिटी विद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन. और मेरी स्टोरी जो है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई स्पेंड मोर years इन हर्बल लाइफ दैन इन माई अदर लाइफ. ओके, सो ये जो स्टोरी है ये मेरी प्रोफेशन की भी स्टोरी है, बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन भी है फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 18 years. तो मैं दोनों स्टोरीज थोड़ी सी शेयर करूँगी. सो आई होप दैट यू विल फाइंड सम इंस्पिरेशन, एंड थ्रू माई स्टोरी आई वॉन्ट टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल. ऑल राइट, सो ओके, yeah, so I will just share my screen with you.
Okay, can you all see my screen? Are you able to see my screen? Yes, yes, we can. Okay. Yes. All right. 1 second. I am myself not able to see this. I will just share it one more time. Sorry. 1 second. Just have patience. Share. Okay. All right. So. Yes. Yes, Is visible. it? I'll stop share. Niranjan, can you share, please? Yeah. let me Because do I'm that. not Okay. able to see the PPT while I'm sharing. Okay. Okay. All right. So we'll just get started. I started with ये न्यूट्रिशन की जो शुरुआत है, इस प्रोग्राम की शुरुआत है, आपने सोचा होगा कि ये मैं पहले से बहुत फिट हूँ, पहले से एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. सो आई लाइक टू गिव यू अ लिटिल बिट अबाउट माई बैकग्राउंड. एज अ चाइल्ड आई वॉज ओके अंटिल जब स्कूल में थी तब आई वॉज ओके, क्योंकि स्कूल डेज में घर से टिफ़िन आता है, उतना ही लिमिटेड खाना होता है, बहुत सारी खेलकूद होती है. सो टिल द टाइम आई वॉज इन 8th 9th आई वॉज ओके. मैं मार्शल आर्ट्स भी खेलती थी. आई वॉज प्रैक्टिसिंग ताइक्वांडो एट दैट टाइम और मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे थी. सो निरंजन, कैन यू डू द स्क्रीन शॉट फुल स्क्रीन? ओके. सो मैं काफ़ी अच्छे लेवल पर खेलती थी, लेकिन जब 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड आया तो मेरी मम्मी ने मेरा जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी कम कर दिया. उन्होंने मेरी स्कूल भी चेंज कर दी बिकॉज शी थॉट आई वॉज नॉट स्टडिंग. प्रॉब्लम स्कूल का नहीं था, प्रॉब्लम मुझ में था. मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अप्लाइड आर्ट, इन ड्राइंग, इन कमर्शियल आर्ट. तो मेरे इंटरेस्ट बहुत अलग थे. लेकिन मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है. माई फादर इज़ अ जनरल सर्जन, माई मदर इज़ एन एनेस्थेटिस्ट. Can you speak a little slowly? ओके. सो मेरे Yeah, पापा जो please. है वो बोथ पेरेंट्स मेरे डॉक्टर्स हैं. मेरे पापा जो है वो जनरल सर्जन है, मेरी मम्मी एनेस्थेटिस्ट है. वो ऑब्वियसली दोनों बहुत इंटेलिजेंट है. उनके कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं थी, फ्रॉम द सिंपल रीज़न कि मुझे मार्क्स नहीं मिलते थे कभी भी. तो आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज़. मुझे स्टडीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मन भी नहीं लगता था. लेकिन मेरे मम्मी ने क्या किया, उन्होंने स्कूल चेंज कर दी और वहाँ से सारा सब कुछ डिस्टर्ब होने लगा. सो स्कूल के बाद मैं घर आती थी और मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं पूरे टाइम बैठ के पढ़ाई करूँ. पढ़ाई तो मैं डेफिनेटली नहीं करती थी, लेकिन घर पे रहती थी. मम्मी पापा नहीं थे घर पे. आई एम द ओनली चाइल्ड. मुझे भाई बहन कोई नहीं है. सो घर पे देखने वाला कोई नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ. उसी दौरान मेरे पीरियड्स आए. ऑफकोर्स ड्यूरिंग 8th स्टैंडर्ड मोस्ट गर्ल्स गेट देयर पीरियड्स. तो प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई और जब प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होते हैं तो सारा हार्मोनल साइकिल भी चेंज होता है और बहुत भूख लगती है. अगर आपको यंग डॉटर्स है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यंग डॉटर्स या यंग लड़कियां जो है वो बहुत सारा उनको भूख लगती है. और ये भूख जो है वो इतनी ज़बरदस्त लगती है कि फिर जो भी घर में होता था उसको मैं खा जाती थी. नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, उनको मेडिसिन के बारे में पता था. कुछ मुझे हुआ तो वो ट्रीट करते थे, लेकिन घर में अगर मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही है तो क्या खाने में रखना चाहिए उसके तरफ उनका इतना ध्यान नहीं था. राइट. सो घर में बहुत सारी चीज़ें रहती थी. खास करके चपाती तो घर में हमेशा हमारे डब्बे में होती है डाइनिंग टेबल पे. तो कुछ नहीं तो मैं मिल्क लेती थी, 1 कप दूध, उसमें चपाती क्रश करके डालो और उसमें शक्कर डालो. दूध साखर पोळी मराठीमध्ये एकदम सगळ्यांच्या घरी असतं. सो ऐसे टाइप के मैं खाना खाती थी एंड आई जस्ट केप्ट ऑन ईटिंग. और कुछ इस तरीके से मेरी हालत होने लगी. ओके. आई स्टार्टेड गेनिंग वेट. उसके बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में मुंबई में एडमिशन मिली. आई वॉज स्टडिंग इन JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स. 5 साल मैं मुंबई में रही और वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी. तो हॉस्टल मतलब सॉरी हमारा घर था, लेकिन हॉस्टल या कॉलेज के जो कैंटीन का खाना मैं खाती थी, क्योंकि आई वॉज ओनली 16 years ऑफ एज एट दैट टाइम. तो खुद से खाना नहीं पका पाती थी. आई यूज टू ईट आउटसाइड, मिसल पाव, वड़ा पाव और बाहर का खाना बहुत सारा खाती थी. एंड देन निरंजन, कैन यू गो नेक्स्ट? तो देखते ही देखते मेरा वज़न बहुत बढ़ने लगा. ऑल थ्रू माई कॉलेज ईयर्स आई केप्ट गेनिंग वेट. सो 16 years से लेकर के ऑलमोस्ट अबाउट 21-22 years तक आई स्लोली एंड स्टेडली स्टार्टेड गेनिंग वेट. और जब मैं यहाँ पर आई केम बैक टू पुणे टू डू माई मास्टर्स. तभी
ठीक था थोड़ा सा, लेकिन तभी एट दैट टाइम हमारी शादी तय हुई। निरंजन एंड मी वी वर गोइंग टू गेट मैरिड, और मेरी ये शादी की फ़ोटो है एंड लुक एट हाउ आई एम लुकिंग। इतनी ज़्यादा मैंने वेट पुट ऑन किया था। आई हैड बिकम 84 kgs। आई वॉज लुकिंग मच ओल्डर दैन वॉट आई वॉज। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे इस दौरान मुझे PCOD स्टार्ट हुआ। तो PCOD स्टार्ट हुआ क्योंकि आई हैड गेन्ड वेट, और वो वज़न क्यों बढ़ा था, बिकॉज आई वॉज ईटिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड। सारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक में खाती थी। सो कॉलेज से आते आते मुझे बहुत भूख लगती थी, मुझे घर आने तक भी दम नहीं निकलता था। मैं बीच में ही रुक के एक पानी पूरी और एक सेव पूरी खाने के बिना मैं घर पे नहीं आती थी। घर आने के बाद मुझे एसिडिटी होती थी, मुझे लगता था दूध से काम हो जाएगा। सो मैं इतना मग भर के फुल मिल्क लेती थी। मुंबई में आर्य डेयरी रहती है, तो आर्य डेयरी का मैं कोल्ड कॉफ़ी लेती थी एंड दैट इज़ फुल फैट मिल्क। तो ऐसे 3-4 बॉटल्स, क्योंकि इतनी एसिडिटी रहती थी। आई स्टार्टेड गेटिंग PCOD। मेरे पीरियड्स डीले होने लगे। एक टाइम पे गोली लेने से पहले मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। सो आई यूज्ड टू गेट माई पीरियड्स ओनली आफ्टर 3 months। PCOD के अलग अलग इश्यूज आने लगे, फेशियल हेयर, वेरिकोज वेन्स, एंड आई वॉज ओनली 24-25 years ऑफ एज एट दैट टाइम। और फिर मेरी मम्मी मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंसीव। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो डॉक्टर ने तभी कहा कि आपको PCOD है। उन्होंने मुझे मेटफॉर्मिन और कैबरगोलिन ऐसे 2 टैबलेट्स दिए थे, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दोज टैबलेट्स। क्योंकि वो टैबलेट्स जो है वो प्री डायबिटिक है। वो टैबलेट्स क्या करते हैं, शुगर जो बॉडी में बनती है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो ये टैबलेट्स मैं लेने लगी, उससे थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ। लेकिन उसी टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ दैट अब वेट लॉस मेरे लिए कोई चॉइस नहीं है, आई हैव टू लूज़ वेट। एक्चुअली ना तब तक मेरे मन में वेट लॉस का विचार कभी था ही नहीं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि अच्छा ओके, अब वेट जो है वो उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा लाइफ इतने अच्छे से चल रहा था। अदर दैन द फिजिकल प्रॉब्लम्स, मुझे जो मस्त पसंद में आया मैं खाती थी। मेरा फेवरेट था एकदम मीठी चाय और खारी बिस्किट डुबो के उसको डब्बा भर के मैं ऐसे ही ख़त्म कर सकती थी। इतनी भूख भी लगती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन अब बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ बेबी, तो मेडिसिन और ये सारी चीज़ें मेरे साथ शुरू हुई। एंड निरंजन कैन यू गो नेक्स्ट। सो आई स्टार्टेड टू लूज वेट। ये अगर देख सकते हो तो ये मेरा PCOD वाला चेहरा है। पूरी तरीके से इन्फ्लेमेशन था। जो हम कहते हैं ना आपको शुगर कम करनी है, बहुत एक्सेस शुगर हम आहार में लेते हैं, तो इस तरीके से यू गेट सम काइंड ऑफ अ स्वेलिंग। तो आप देख सकते हो आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी। एवरी सिंगल डे मुझे कपड़े ठीक से नहीं फिट होते थे। आई वॉज ऑलवेज ब्लोटेड, बहुत पसीना आता था मुझे, बहुत गर्म होता था अंदर से। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि आई एम नॉट एबल टू कंसीव, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, एंड दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल। अगर आप देख सकते हो तो उस टाइम पे मैं जॉब करती थी। सो मेरा जॉब ऐसे था कि आई हैड टू सिट फॉर इन वन प्लेस फॉर 10-12 आवर्स। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। आई वॉज वर्किंग एज एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर। बहुत अच्छा जॉब था, लेकिन आप मेरे साथ वाले लोगों को देख सकते हो। हाउ कैन आई, मतलब इन सारे लोगों के साथ रह के मैं क्या कर सकती थी। सो आई वॉज विद देम और आई वॉज डूइंग वॉट दे वर डूइंग, विच मीन्स वी वर ईटिंग आउट। हम लोग बाहर असाइनमेंट के लिए जाते थे, तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह इट वॉज नॉट इन एनीबडीज माइंड। सिर्फ वी यूज टू गेट अ ब्रेक, ईट सिट, गेट अ ब्रेक, ईट सिट, ऐसे ही चलता था। नेक्स्ट, तो आप अगर देख पाओगे तो ये मेरे ऑफिस के फ़ोटोज़ है। अगर आप देख सकते हो तो इस तरीके से हम बाहर खाते थे, पार्टीज़ भी ऐसे रहती थी। आप टेबल पे देखोगे तो दिस वॉज हाउ आई वॉज लिविंग माई लाइफ। क्योंकि कुछ अवेयरनेस नहीं थी। ओके, कुछ क्या खाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने गोलियां शुरू की तो ऑब्वियसली प्री डायबिटिक मेडिसिन से वेट लॉस ऑटोमेटिकली थोड़ा हो जाता है। अगर आप देख सकते हो तो उस टाइम पे जो मेरा वेट लॉस था, यू कैन सी माई आर्म्स, यू कैन सी, अच्छा वेट लॉस नहीं था, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन लेकर के वो प्री डायबिटिक स्टेज जो है वो मेरी वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी किसी को इन्सुलिन रेजिस्टन्स है, प्री डायबिटिक है, उनका वेट लॉस ज़रूर होता है। म्हणजे मराठीमध्ये आपण म्हणतो हातापायाच्या काड्या होतात, क्योंकि ये बहुत सारा मसल वेस्टिंग होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मसल वेस्टिंग हुआ।
फिर भी थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे मैंने शेक हर्बल लाइफ को यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि तब तक निरंजन के साथ मेरी शादी हो गई थी, हमारे घर में ऑलरेडी हर्बल लाइफ था। तो इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इतना आई वॉज जस्ट यूजिंग द शेक्स जस्ट बिकॉज मुझे बेबी चाहिए था। ओके, आई हैड नो अदर इंटेंशन। तो कैसे भी करके मुझे कंसीव करना था। तो वैसे थोड़ा सा मेरा वेट लॉस हो गया, बस 8-10 kg का मेरा पहला वेट लॉस था। और वेट लॉस होते ही आई बिकेम प्रेग्नेंट, आई कंसीव्ड। कैन यू गो नेक्स्ट? सो इस तरीके से तो पूरा वेट लॉस नहीं हुआ था। आई स्टार्टेड एट ऑलमोस्ट 86 kgs, तो आई केम टू अराउंड 77-78, तभी मैंने कंसीव किया। तो पूरा वेट लॉस भी नहीं हुआ था। एंड बिकॉज मुझे कुछ अवेयरनेस नहीं था, उसके बारे में कुछ अप्रिसिएशन नहीं था, ऐसे ही मैं मेरा लास्ट चॉइस था कि अभी चलो एक्सरसाइज का भी कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, डाइटिंग करके तो ये हर्बल लाइफ का शेक जो है चलो मैं ले लेती हूँ। इस तरीके से मैं बहुत मतलब एज अ कॉम्प्रोमाइज़ मैंने यूज़ किया, इसीलिए पूरा वेट लॉस नहीं कर पाई, रुकी भी नहीं। उसी बीच में मैंने कंसीव किया और आप देख सकते हो मेरा पोस्ट जो बेबी का जो मेरा वेट था, इट वॉज जस्ट, आई वॉज इन द वर्स्ट स्टेट, इट वॉज सो हॉरेबल। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। अगर आप मेरे दादी को देख रहे हो, शी वॉज 90+ एट दैट टाइम। लुक एट माई मदर, दे आर सो फिट। मेरे दादी को आप देखो, वो एट द एज ऑफ 90 वो मुझे देखने के लिए आई थी, एंड शी वॉज सिटिंग देयर विद मी फॉर द फुल डे, एंड लुक एट माई शेप एंड माई कंडीशन। बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन थी। और ये सिर्फ मेरा वेट नहीं था, मुझे एवरी डे चलने फिरने में प्रॉब्लम्स होती थी। आई कुडंट सिट डाउन, बेबी को लेकर के मैं ऐसे नीचे नहीं बैठ सकती थी, मुझे मेरे घुटने बहुत दर्द करते थे। एंड लुक एट दिस हाउ आई वॉज लुकिंग। और मुझे ये पता चला, जस्ट बी हियर निरंजन, मुझे ये पता चला कि ये जो मेरा वेट गेन का जो सिलसिला है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट। क्योंकि देखते ही देखते माई डॉटर वॉज ग्रोइंग अप, मेरे जॉब के वजह से मुझे उसको देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। आई वॉज आउट ऑफ द हाउस फॉर 8-10 आवर्स। तो मेरा जॉब जो था वो मुझसे मेरी हेल्थ छीन रहा था। कितना भी मैं कोशिश करूँ, मैं हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, बिकॉज सिटिंग सेडेंट्री जॉब एंड ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग फूड, बहुत सारा स्ट्रेस था। बिकॉज आई वॉज अ टीम लीडर एट दैट टाइम, मेरे अंडर में कुछ लोग काम करते थे। MNCs के साथ हमारा टाइप था, क्योंकि उनके लिए हम ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते थे, तो लेट नाइट कॉल्स रहा करते थे। आई यूज टू कम बैक वेरी वेरी लेट, सो आई हैड नो टाइम टू गिव फॉर माई डॉटर, और मेरी हेल्थ बहुत बिगड़ने लगी थी। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम माई जॉब एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हेल्थ, क्योंकि अगर मैं हेल्थ को ठीक नहीं रख पाऊँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सो सेकेंड, मुझे पता चला कि अगर मुझे कुछ अवेयरनेस नहीं है, इफ़ आई डोंट लर्न अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट हेल्थ फिटनेस, अगर मैंने इसके बारे में कुछ सीखा नहीं, तो ये वेट लॉस जो है ये मेरे लिए सिर्फ एक प्रोग्राम बनेगा। तो तब आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, और मैंने मेरे खुद के बॉडी, बिकॉज आई वॉज ओनली 27 ईयर्स, 27 साल की उम्र में आई हैड माई एंटायर लाइफ इन फ्रंट ऑफ मी। आई हैड माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई बेबी। सो ये सारे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो मुझे जॉब में सैलरी ज़रूर मिल रही थी, लेकिन उस सैलरी के एज अपोज टू दैट मैं बहुत सारी चीज़ें मैं गंवा रही थी, एंड माई हेल्थ वॉज द बिगेस्ट कंसर्न। तो आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक अ 6 month ब्रेक। उतने थोड़े बहुत सेविंग्स थे, आई सेड लेट मी एंड आई वॉज आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन हार्ड वर्क करते करते कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत हो रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड स्टडी दिस होल थिंग, ताकि मुझे ज़िंदगी में वेट लॉस की शिकायत वापस ना आए। बिकॉज बाय दैट टाइम इट वॉज ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स जो मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो मैं बहुत थक गई थी, मैं पक गई थी इससे। आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड आई जॉइन हर्बल लाइफ फॉर माई ओन रिजल्ट। लेकिन मैंने उसको थोड़ा पढ़ना, थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया, और ये मेरे लाइफ के सबसे बेहतरीन 6 months है, जब मैंने हर्बल लाइफ के साथ मैंने थोड़ा कोचिंग लेना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई स्टार्टेड गोइंग टू हर्बल लाइफ इवेंट्स, आई स्टार्टेड गोइंग टू ट्रेनिंग्स। तो हर्बल लाइफ में जब आप आते हो तो इसको ना आप पार्ट टाइम लेवल में भी कर सकते हो। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जॉब और आपका प्रोफेशन इज़ डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू हेल्थ एंड फिटनेस। अगर आप
थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हो, जैसे मैंने किया, थोड़ा सा इसके साइंस अंडरस्टैंड किया, और करते करते आप देख सकते हो मेरा वेट लॉस बहुत अच्छा स्टार्ट होने लगा, बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ पर कीर्ति मैम का भी आप फोटो देख सकते हो। सो आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन हर्बल लाइफ एज अ कोच, क्योंकि तब तक मुझे लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, अरे यू आर लूजिंग वेट, हे कसं करतेस तू, व्हाट आर यू डूइंग। सोसाइटी के अंदर मैं जब चक्कर लगाती थी प्रैम में लेकर बेटी को, तभी लोगों ने पूछना स्टार्ट किया। सो आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल। और ये सबसे अच्छी बात है कि अब मेरे पास कोई लोग थे जिनको मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। जो मैं कर रही हूँ 2 shakes 1 meal 1 snack, वेरी सिंपल, उसी को मैं लोगों को बता रही थी, जस्ट वेट निरंजन, उसी को मैं लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और ऐसे करते करते 3-4 लोग, यू नो, आई स्टार्टेड हेल्पिंग मुझसे, मैं खुद से उनको हेल्प करती थी और उनको भी रिजल्ट आने लगा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि आई कुड नेवर गो बैक टू 84 kgs। क्यों? क्योंकि अब ये सारे लोग मेरे तरफ एज अ रोल मॉडल देख रहे थे। तो अब मैं कैसे करूँ? तो मेरा हाईएस्ट आपको रिकमेंडेशन है, अगर आपको वेट मेंटेन करना है, वेट लॉस करना है, तो ट्राई टू हेल्प 2 or 3 पीपल अराउंड यू। अगर आपके साथ कोई होगा ना, तो आप कहीं पर भाग नहीं सकते हो, यू विल गेट लॉक्ड, ओके। और वो लोग जो है वो आपके तरफ देखेंगे, और आपको भी रिवर्स प्रेशर आएगा कि अब मैं किसी को गाइड कर रही हूँ, अब कोई मेरे साथ, मेरे रेफरेंस से कोई आए हैं, तो मुझे ठीक रहना है, अदरवाइज वो क्या बोलेंगे, ओके। सो इस प्रेशर, यू नो, इट्स अ नाइस प्रेशर टू हैव, इट्स अ पॉजिटिव प्रेशर। और इसी के वजह से मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू की। फिर 3 साल के बाद, कैन यू गो नेक्स्ट, मुझे 2 बच्चे चाहिए थे, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड, तो मुझे अकेले से नहीं बेटी को रखना था, आई वॉन्टेड टू हैव अ बेबी। अब ये वाली जो मेरी प्रेगनेंसी है, इस टाइम पे आई वॉज वेरी अवेयर, मुझे नॉलेज था, मैं अच्छी चीज़ें खाती थी, करेक्ट चॉइसेस मैं कर रही थी, कुछ भी मीठा मीठा खाना। सो प्रेगनेंसी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया, और हमारा बेटा हो गया आफ्टर 3 years। एंड माई वो वाला फोटो मेरी बेटी का जो मैं फीड कर रही थी, और ये वाला फोटो आप देख सकते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एक कम्युनिटी है, मैं बहुत सारे अलग अलग कोचेस के साथ जुड़ी थी, मेरे खुद के थोड़े क्लाइंट्स बन चुके थे, और अब मैं जॉब नहीं कर रही थी, बिकॉज आई वॉज अर्निंग वेरी वेल विद दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे जॉब में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एज अ कोच ओनली मैं 3 से 4 घंटे काम करती थी, रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर द फैमिली, नो स्ट्रेस, गुड इनकम। तो बहुत खुशी का ये सारा मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी वॉज रियली वेरी प्लेजरेबल फॉर मी। नेक्स्ट, ऐसे करते करते फिर आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, क्योंकि अब मुझे पता चला सिर्फ डाइट से नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मसल वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो हर्बल लाइफ ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और हर्बल लाइफ इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है कि जो भी आप आपके ट्रांसफॉर्मेशन में पाना चाहते हो, हर्बल लाइफ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। सो आई ग्रैब्ड। तो आपको भी मैं रेकमेंड करूँगी, जब भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ चैलेंज है, कुछ, तो उसको ग्रैब करना है। वैसे ही ये मेरा फर्स्ट 5 किलोमीटर का रन था, जो मैंने 33 मिनट्स में कंप्लीट किया, एंड यहाँ से मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला। शेक्स हम हमेशा यूज़ करते हैं, कहीं पर भी जाएंगे, वी आर ऑलवेज कैरिंग आवर शेक्स, ओके। सो कभी भी हम इधर उधर का कभी कभी खाते हैं, लेकिन ऑलवेज द फोकस इज ऑन गुड न्यूट्रिशन, ओके। सो बहुत सारे हमने ट्रैवलिंग शुरू की, आप देख सकते हो, एज अ कोच भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करने का यहाँ पर मौका मिला, एंड इट्स अ वेरी ईजी थिंग, इतना सिंपल है, जो आप कर रहे हो उसी को शेयर करना है। सो ग्रुप एक्टिविटीज़, और इससे ना एक माइंडसेट में चेंज होगा। फिजिकल चेंज इक्वल्स माइंडसेट चेंज। अगर फिजिकली हम ठीक नहीं हैं तो माइंडसेट भी बहुत नेगेटिव रहता है। सो वी स्टार्टेड गोइंग आउट, वी स्टार्टेड हैविंग ग्रुप एक्टिविटीज़, और मुझे अच्छा लगने लगा, बिकॉज आई स्टार्टेड बिकमिंग अ वेरी हैप्पी पर्सन, ओके। मेरा चिड़चिड़ापन चला गया, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, PCOD, एवरीथिंग जस्ट केम अंडर कंट्रोल, एंड देन दिस इज़ हाउ लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। बहुत सारा न्यूट्रिशन हमने लिया, तो वी कुड रेकमेंड दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल। नेक्स्ट, ओके, एंड दिस वॉज माई 21 किलोमीटर रन। तो प्रोग्रेस होता गया, न्यूट्रिशन यूज़ करते गए, एंड दिस इज़ हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन केप्ट ऑन हैपनिंग। गो नेक्स्ट। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस। जब हर्बल लाइफ के अंदर हम आगे बढ़ते रहे, हमारी टीम बढ़ती रही,
तो हमें मौका मिला टू गो टू द हेडक्वार्टर्स। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि हर्बल लाइफ सेफ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमने हमारे आँखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया है, कितनी अमेजिंग फैसिलिटी में हमारा न्यूट्रिशन बनता है। ओके, गो नेक्स्ट। तो ये LA में था, लॉस एंजलिस में। तो दिस इज़ हाउ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट रिसर्च्ड। अगर आपको लग रहा है ये कहाँ से डब्बे आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये जानो कि इसके पीछे इतने लोगों का रिसर्च है, इतने क्लेम्स करते हैं ये लोग कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ टॉप क्लास। और क्लेम को देखने के लिए हमें मौका मिला था। ये जो नीचे वाले इंसान आप देख रहे हो, ही इज़ एन इंडियन जो US में है और हर्बल लाइफ फैसिलिटी में काम करते हैं, तो उनसे भी मिलने का मौका मिला। मिस्टर पटेल है ये, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ज़बरदस्त एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि वी आर इन द सेफ हैंड्स। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंट टेस्ट, इंग्रेडिएंट्स फॉर आइडेंटिटी एंड इम्प्योरिटीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। सो बारीक से बारीक रिसर्च करके ये न्यूट्रिशन बनाया गया है। ये फूड है, ये खाना है, बहुत बेहतरीन खाना है। तो इसके वजह ये डाउट रखने का कोई भी, तो हमने यहीं पर तय किया कि लाइफ टाइम हम लेंगे। बच्चे तो ले ही रहे थे, व्हेन माय किड्स वर इन माय स्टमक, फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई एम यूजिंग द न्यूट्रिशन। तो बच्चों को, मम्मी डैड, सारी फैमिली को, और ये जो है ये हमने एज अ लाइफस्टाइल और एज अ प्रोफेशन, ये हमारा मतलब दिस इज़ आवर कमिटमेंट टू हर्बल लाइफ कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं, लुक एट माई डॉटर, शी इज़ 5 feet 8 inches नाउ, क्योंकि जब से मेरे पेट के अंदर थी तभी से उसने न्यूट्रिशन लिया है। एवरी डे दे हैव शेक्स, आप उनका चेहरा देख सकते हो, व्हेन दे हैव द शेक, इससे उनको अच्छा लगता है। वो दोनों स्पोर्टिंग एक्टिविटी में, मेरी बेटी जो है वो नेशनल लेवल स्विमर है, मेरा बेटा जो है ही इज़ इनटू वॉलीबॉल, यहाँ पे आता है तो स्क्वॉश खेलता है, जिमिंग करता है। सो इट्स अ वेरी फिट लाइफस्टाइल दैट वी आर ऑल्सो गिविंग आवर किड्स। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, एजुकेशन वो खुद से करेंगे, जैसे उनको चाहिए वैसे वो करेंगे, लेकिन फिटनेस का जो आइडिया कंसेप्ट है वो मुझे उनमें डालना है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं थी। मेरी डॉटर को मुझे उसको बताना है कि फिजिकली आप जब फिट रहोगे तो आप मेंटली जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, यू विल बी एबल टू अचीव। सो फिजिकल फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसे मानती हूँ कि मेरा एंटी एजिंग हो रहा है। मुझे आई एम 43 years ऑफ एज नाउ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इतने आप सारे लोग मेरे साथ हो। सो यू आर माई पावर। क्योंकि अगर मैं मोटी हो गई वापस, तो क्या आप यहाँ पे आओगे? नेवर, आप चले जाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, आपको मैं इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ, और आप सारे लोग मुझे इंस्पिरेशन देते हो, क्योंकि मुझको मैं आप में, मतलब आई सी माई सेल्फ इन यू। आपके जो स्ट्रगल्स है वो मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं, तो जितना हो सके उतना आई एम गोइंग टू हेल्प यू। और आपको मैं इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आपको इस न्यूट्रिशन को छोड़ना नहीं है। किसी पे भी आपको विश्वास नहीं करना है, ये गलत है, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट, लुक एट मी एंड लुक एट मी नाउ। तो अगर आपको ऐसा साइड इफ़ेक्ट आप चाहते हो, अच्छा साइड इफ़ेक्ट, तो आप ज़रूर इस न्यूट्रिशन को 100% यूज़ करो। इससे ना किडनीज़ की खराबी होती है, ना ना किसी भी एवरीथिंग। इनफैक्ट आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत भी नहीं आएगी। मेरे घर में तो डॉक्टर्स हैं, घर में हैं, लेकिन मैं उनके पास कुछ एडवाइस नहीं मांगती हूँ, बिकॉज इनफैक्ट मैं उनको एडवाइस कहती हूँ। आई रिकमेंड देम कि मम्मा यू टेक इम्यून हेल्थ। अभी आप डॉक्टर हो, बहुत सारे पेशेंट्स से आप मिलते हो, यू डोंट वांट टू कैच दैट, सो यू हैव टू टेक इम्यून हेल्थ। मेरे पेरेंट्स 2 टाइम शेक लेते हैं, सारे टैबलेट्स यूज़ करते हैं, मेरे फादर इन लॉ शेक यूज़ करते हैं, एंड द एंटायर फैमिली यूजेस। सो इट इज़ रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो हर्बल लाइफ के साथ आपको रहना है, न्यूट्रिशन को यूज़ करना है, न्यूट्रिशन से प्यार करना है, बिकॉज दैट इज़ वॉट इट इज़ मेकिंग अस सो हेल्दी। और आपको थोड़ी सी कम्युनिटी आपके साथ बिल्ड करनी है, आपके फैमिली को इसको स्टार्ट करना है, आपके फ्रेंड्स को यहाँ पर लाना है। सो आप भी टिके रहोगे और you will help so many people, and because you are helping people you will keep staying here। और जब तक आप यहाँ पे हो तब तक डे बाय डे आप में बहुत बेहतरीन एक ट्रांसफॉर्मेशन आता रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल जर्नी। आई थैंक द न्यूट्रिशन, आई थैंक मार्क ह्यूज जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को बनाया,
आई थैंक द कम्युनिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट आई वॉन्ट टू थैंक निरंजन, क्योंकि उनके वजह से हर्बल लाइफ मेरी ज़िंदगी में आया। वो मेरे कोच रहे हैं। ही टॉट मी हाउ टू मेक द शेक, हाउ टू टेक द शेक, and because of him I am here. So thank you very much for this entire community and giving me a chance to share my story. Back to Niranjan. ऑलराइट, सो आपने ये इंस्पिरेशनल जर्नी देखी और जैसे आप सबकी वजह से गौरी का वेट कभी नहीं बढ़ सकता है बिकॉज शी सीज हरसेल्फ इन यू, तो उसकी वजह से मेरा वेट कभी नहीं बढ़ सकता बिकॉज शी इज देयर विथ मी ऑल द टाइम. सो आई एम अंडर यूटिलाइज्ड, आई एम अंडर कोचिंग ऑल द टाइम. सो इट इज रियली रियली अमेजिंग. बट ऐसे आप आपकी फैमिली के लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल फिगर बन सकते हैं. आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत, कैसे कहते हैं, एक रोल मॉडल बन सकते हैं. और ये करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इसके लिए आपको पीएचडी होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको कॉलेज में फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है. आपका जो वेट है उसको आप अच्छी तरीके से कम करिए और जो तकलीफ है आपको किसी फिजिकल लेवल पे, उससे आप छुटकारा पाइए. ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन यहाँ पर बनेंगे. ओके, तो दिस वाज रियली अमेजिंग. यस, वी हैव समबडी फ्रॉम पूजा साइड. यस सर. सर मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ 1 साल से. हाँ, और मैं 4 दिन पहले यहाँ पर ज्वाइन किया. ओके, साथ में शुगर पेट की मैं परसों ज्वाइन किया है. शुगर पेट का ओके, ओके, उन्होंने बताया डॉक्टर लेडी उन्होंने बताया, उनसे बताया हर्बल लाइफ का मैं शेक लेता हूँ. तो फिर उन्होंने बोला हम लेंगे इसमें क्या है तो लेना चाहिए, जरूरत है शुगर. नहीं, उन्होंने देखा क्या शेक का कंटेंट क्या है, उन्होंने देखा क्या? हाँ, देखिए मैं इससे बात क्या जानते हैं इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं. नहीं, उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पढ़े क्या? नहीं, मैं जब कल बात फेस टू फेस बात होगी तो उनको बताया मैं तो इससे हर्बल शेक दे रहा हूँ, तो उन्होंने नाम देने के लिए. तो क्यों नहीं लेना चाहिए? उन्होंने कुछ बताया आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? नहीं ये सब बोले अगर आप जो हमसे ट्रीटमेंट लेंगे तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट चालू कर देंगे उनसे. नहीं, जो भी डॉक्टर है आपके, उनसे आपने बोला कि हर्बल लाइफ में ले रहा हूँ, उन्होंने आपसे कहा नहीं लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लेना चाहिए इसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? क्यों लेना चाहिए सब, क्या जरूरी है क्या शुगर के लिए हर्बल लाइफ लेना? नहीं, तो नहीं, सबसे पहले मुझे लगा आपकी आवाज सर ठीक से नहीं आ रही. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. सर मैं शुगर पेशेंट हूँ तो मुझे हर्बल लाइफ लेना चाहिए क्या नहीं? लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए आप मुझे बताइए. यही बोला उन्होंने, क्यों लेना चाहिए? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप खाते हैं उसी में से तो आपकी बॉडी में शुगर तैयार होती है. तो जब आप हर्बल लाइफ ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में आप ऐसा फूड दे रहे हैं जिससे बॉडी में ज्यादा शुगर तैयार नहीं हो रही है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अच्छे से प्रोटीन लेते हैं, अच्छे से वर्कआउट करते हैं और अपने मसल्स को अगर आप डेवलप करते हैं तो अपने आप आपकी बॉडी जो है वो अपनी शुगर लेवल को रेगुलेट करना शुरू कर देगी. अब आपकी तरफ देख के आप डेफिनेटली ओवरवेट नहीं लग रहे, पर ओवरवेट नहीं होने के बावजूद भी अगर आपको शुगर है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है और मसल परसेंटेज कम है. दूसरा, अगर आपने हर्बल लाइफ के कैन के ऊपर अगर देखा तो उस पर क्लियरली लिखा गया है कि दिस इज लो जीआई प्रोडक्ट. ओके, लो जीआई प्रोडक्ट है. इसका मतलब है ये शेक लेने से आपकी बॉडी में शुगर तैयार नहीं होती. आप जब यहाँ पर आए थे तो हर्बल लाइफ बिना लिए ही आप डायबिटिक थे ना, बराबर है? हाँ, तो इसका मतलब है आप हर्बल लाइफ बिना यूज किए ही जो आप नॉर्मल खाना खा रहे थे उसी में से आपकी शुगर बढ़ रही थी और इसी के वजह से आपको डायबिटीज ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है. तो डायबिटीज और हर्बल लाइफ का मतलब, डायबिटीज होने पर हर्बल लाइफ नहीं लेना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट आपकी शुगर लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगी अगर आपने लिया है. आप जिस क्लब में अभी आप जा रहे हैं उसी में आपके सामने बहुत बढ़िया शुगर का रिजल्ट है ना. मंजू जो है वहां पर उसकी 400 शुगर थी, अभी वो टोटली नॉर्मल हो गई है. वो हर्बल लाइफ लेने के बाद ही उसकी शुगर कम हुई है, डॉक्टर के मेडिसिन से नहीं कम हुई है. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रियलाइज. तो ये आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू कि सुबह सुबह जब आप नॉर्मल नाश्ता जो भी आपका है वो आप करते हैं तो उससे आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है. शुगर लेवल जैसे ही बढ़ती है उसके पीछे पीछे इंसुलिन भी शरीर में बहुत ज्यादा तैयार होने लगता है.
पर यही अगर आप हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा राइज नहीं होती है, और उसके वजह से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीशन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, जिससे दिन भर में आप एक स्टेबल ब्लड शुगर एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और बहुत जरूरी है कि आप हर्बलाइफ लें, क्योंकि आपकी शुगर लेवल उससे बहुत अच्छी तरीके से स्टेबलाइज रहने वाली है। दैट इज व्हाट इज, इसी के लिए आपने ये लेना चाहिए। सर कल ही मुझे डॉक्टर से बात हुई थी, कल ही उन्होंने मेरे को थोड़ा क्या क्या दिन बना है मॉर्निंग टू इवनिंग, कल हमने बात किया और मुझे आज को बिल बना देने वाला है। मैं जो ले रहा हूँ वो काफ़ी मात्रा में सही है, इसके अंदर सिर्फ क्वान्टिटी बढ़ानी है, क्वान्टिटी बढ़ानी है। तो जो ले रहा हूँ परफेक्ट बात है, सिर्फ मैं जो खाता हूँ कम खाता हूँ, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा बढ़े, आप कम खाते हो, काफ़ी कम खाते हो, तो वो आज से मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा जो क्वान्टिटी है वो बढ़ाने वाला हूँ। तो उन्होंने तो उसके साथ आप हर्बलाइफ लीजिए ना, उससे आपको नुकसान तो कुछ नहीं है ना। नहीं फिलहाल प्लस भी नहीं माइनस में सब बता नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने 2-4 महीने किया है, तो मैं प्लस और माइनस के बारे में कमेंट करूँगा। हाँ, तो आप कंटिन्यू करिए, यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप यू कंटिन्यू विद दिस, इससे नुकसान तो आपको जीरो है, कुछ होने वाला तो है नहीं आपको। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना नफा तोला जो न्यूट्रिशन है वो रोज के रोज आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ तो फर्क न्यूट्रिशन वाइज तो पड़ेगा ही। तो ये न्यूट्रिशन अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन के तौर से अगर लेते रहे तो उससे नुकसान आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आपको देखना है कि आपकी ब्लड में, मतलब बॉडी में शुगर क्यों तैयार हो रही है, और वो तैयार जो शुगर हो रही है उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन क्यों लेना पड़ रहा है, और ये ऐसा कुछ मेडिसिन है क्या जो कुछ दिनों के बाद आप बंद कर सकते हैं। अगर आप बंद कर सकते हैं अपने मेडिसिन को तो ठीक है लेने के, पर अगर आपके डॉक्टर आपसे कहेंगे कि ये गोली आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है, इसका मतलब है ये गोली के सहारे आपकी शुगर आप रेगुलेट कर रहे हैं, आप डाइट या लाइफस्टाइल के सहारे ये शुगर को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको सोचना है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर बहुत लंबे अरसे तक कोई भी व्यक्ति ले तो उस मेडिसिन के प्रति हमारी जो बॉडी है वो एक इम्यूनिटी तैयार करने लगती है, मतलब हमारी बॉडी उसको इम्यून बनने लगती है। तो फिर 50 mg की गोली से या 0.5 से जो गोली शुरू होती है वो धीरे धीरे 0.5 की 2 गोलियां, फिर 1 ग्राम की 2 गोलियां, ऐसे धीरे धीरे आपका डोज बढ़ता जाएगा, बिकॉज योर बॉडी विल बिकम यूज्ड टू दैट सॉर्ट ऑफ फूड। तो ये आपको नहीं करना, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू नॉट डू। ओके, ठीक है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो, मैं भी बोली जाती है। आई थिंक शुगर की ब्रांड करें, शुगर लेवल से थोड़ा तो है काफ़ी जो बड़ा है, अच्छा है, और लेवल भी बढ़ गया है, तभी मेरी शुगर 50 है, और वो से करूँगी या जल्दी करूँगा, वो अपने को कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी सून। यानी सेम टाइम दोनों ज्वाइन किया, आपका भी ज्वाइन किया है और भी ज्वाइन किया है, आपको डबल इफेक्ट मिलेगा, आधे समय में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पूरा क्या मजे के साथ चलेगा सर। थैंक यू सर। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ, ओके, फैंटास्टिक, ओके। Yes, so if we have experiences हम थोड़ा बाद में लेंगे, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम अभी लेंगे, बिकॉज वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम। कल के दिन आप क्या करिए, आपके हाथ पहले से ही आप हैंड रेज करके रखिए। तो सुब्रत, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Yes, good morning, sir. My wife wants to ask questions, sir. Okay. Yeah, good morning. नहीं, आप मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आप कैमरा के पास आकर के बोलिए। बस याच्यावर मला ना वेगवेगळे सेलचा त्रास आहे. हम्म, नहीं, मुझे यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर कि ये क्यों हो रहा है, वेरिकोज वेन का आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, वो थोड़ा सा आप एक बार डॉक्टर से, मतलब उनसे कंसल्ट करके आप देखिए। हार्मोनल इम्बैलेंस और वेरिकोज वेन का वैसा नहीं, आई कैन वेरिकोज वेन्स यूजुअली होता है, यूजुअली दिस इज नॉट द ओनली रीज़न, लेकिन वेरिकोज वेन्स 2-3 वजह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कभी ओवरवेट रहे हो तो प्रेशर आने के वजह से वेरिकोज वेन्स थोड़े से पॉप होने लगते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी कोई इंजरी रही है और आप काफ़ी दिन तक इमोबाइल, आपका पैर ऐसे ही आपको रखना पड़ा है विदाउट एनी मूवमेंट, देन वेरिकोज वेन्स कैन हैपन।
थर्ड रीज़न इज़ पोस्चरल होता है। आप अगर आपके काम के वजह से या किसी भी वजह से बहुत सारा टाइम अगर आप खड़े रहो विदाउट लेग मूवमेंट, ओके, तो क्या होता है कि हमारे काफ में ना, काफ जो पोटरी होती है काफ, उसमें वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को वापस शंट करते हैं, मतलब इम्प्योर ब्लड आता है और काफ से इम्प्योर ब्लड वापस शंटिंग होता है। तो वो शंटिंग ठीक से ना, वो वाल्व जो है वो ठीक से, कभी कभी माइक्रो वाल्व्स है वो ठीक से काम नहीं करती है, शंटिंग ठीक से नहीं होता है, और वहीं पर वो वाल्व जो है वो माइक्रो टेयर बन जाते हैं, और वहीं पर वो मतलब हमारा जो इम्प्योर ब्लड है दैट गेट्स सॉलिडिफाइड ओवर देयर। सो वेरिकोज वेन्स अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं। कभी कभी सिर्फ दाग धब्बे जैसे वो दिखते हैं, वो कुछ ट्रबल नहीं करते हैं। कभी कभी दैट सेम वेरिकोज वेन्स कैन गिव पेन, और समटाइम्स वो वेरिकोज वेन्स के वजह से कुछ ब्लॉकेजेस भी वहाँ पे हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। इसका मतलब है रेगुलर एक्सरसाइज। अब मुझे जो वेरिकोज वेन्स थे वो दाग थोड़े हैं वैसे ही, गए नहीं है टोटली, लेकिन वो जो ऐसे बाहर ऐसे टर्क के आए थे ना, वो एकदम कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन अब बढ़ा है, वो शंटिंग अब थोड़ा ठीक से होने लगा है। सो फॉर सर्कुलेशन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मूवमेंट में रहना है, एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू कीप योर लेग्स मूविंग, एंड सेकेंडली सर्कुलेशन के लिए आपको अच्छा खाना भी लेना है। और हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में नाइट वर्क्स बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन है, जो आप रात को एक स्कूप आपको पानी में डालना है। नाइट वर्क्स के वजह से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बैलेंस जो है वो अच्छा रहता है। ब्लड वेसल्स जो है, हार्ट में से जो वेसल्स आते हैं उसकी इलास्टिसिटी बने रहती है, और आपके ब्लड वेसल्स में से ब्लड का इनफ्लो आउटफ्लो बहुत अच्छा रहता है। सो वेरिकोज वेन्स के लिए नाइट वर्क्स एवरी डे, रात को सोने से पहले लेना हैज़ क्रिएटेड अ मैसिव डिफरेंस। और सिर्फ वेरिकोज वेन नहीं, जिन भी लोगों को हार्ट का इशू है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से, सर्कुलेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नाइट वर्क्स ये बहुत बेहतरीन है। ये लुई इग्नारो जो है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने हर्बल लाइफ के लिए खास करके बनाया है। बाय द वे मेरी मम्मी एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर है, तो उनका भी ये कहना है। पता है वो थिएटर में जो दो कैन्स होते हैं, जो पाइपलाइंस आती है, एक में ऑक्सीजन होता है और दूसरे में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देते हैं तो हार्ट ठीक से काम करने लगता है। जब भी पेशेंट को इमरजेंसी आए, हार्ट अटैक आए, कार्डियक अरेस्ट आए, तो ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों देना पड़ता है। तो हमारे पास तो इतना बेहतरीन नाइट वर्क्स है। नाइट वर्क्स लेने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बैलेंस नेचुरली बॉडी में अच्छा रहता है और सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होता है। सो आपको रात को एक स्कूप लेना स्टार्ट करना है, और आप महीने 2 महीने में आप डिफरेंस देखोगे, ओके। लेकिन अगर किसी तीसरे रीज़न की वजह से वेरिकोज वेन्स है या बहुत आपको पेन हो रहा है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक विद द डॉक्टर। सो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। ऍक्च्युली मॅम ते वेरिकोज वेन्स जे आहे ते आता ह्या गेल्या 3-4 महिन्यामध्येच तिला व्हायला सुरुवात झाली। त्याच्यामुळे नाइट वर्क सुरू करा आणि एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करा। सो सुबह का शेक, रात का नाइट वर्क्स और एवरीडे एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, इससे एटलीस्ट वो बढ़ेगा नहीं, ओके, इट विल नॉट इंक्रीज। Super. Okay, so guys, we are all already up with time. So कल के दिन अगर आपके कुछ questions है ना, make sure that you raise your hand right from the beginning, ताकि हमें पता चले कि आपके questions हैं। Definitely we will love to answer all your questions. हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके कुछ questions हैं और हम उनको answer कर सकें। All right. So now we will want to talk to people जिनका आज day number 3 है। तो अगर कोई है यहाँ पे जिनका आज डे नंबर 3 है, मेक श्योर कि आप यहाँ पर रुके रहें, और बाकी सारे लोग यू कैन कंटिन्यू विथ योर डे, और कल हम दोबारा मिलने वाले हैं, ओके। तो ऑल द पीपल विद डे नंबर 3 हम लोग कल मतलब आज भी उनसे बात करेंगे। तो बाय बाय एवरीबॉडी। प्रियंका जी आप हैं, पर आपकी जो गेस्ट है वो नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
है ना राधा राधा करके है ना इधर उनका डेलिवरी हाँ हाँ राधा ओ ओ ओके ओके यहाँ पर अरमान करके कोई है अरमान ओके वैशाली भोंदराव मैडम आप आपले गेस्ट कोण आहेत सॉरी आपले हो कोच कोण आहेत तुमचे ते अनम्यूट करा तुम्ही वैशाली भोंदराव आपले कोच कोण आहेत देन वी हैव अरमान अरमान करके जो है आपके कोच कौन है ओके तो राधा जी आप कभी से हमारे साथ वर्कआउट कर रही है 3 दिनों से नहीं आप अनम्यूट करिए मैम जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके गुड मॉर्निंग और कैसा लग रहा है आपको 3 दिनों से वर्कआउट करके अच्छा लग रहा है। ओके और क्यों ज्वाइन किया है आपने ये कम्युनिटी को वेट लॉस करना था। वेट लॉस करना और कहाँ से ज्वाइन किया है आपने मुस्ताइल ओके यस हेमंता गुड मॉर्निंग सर।